Sometimes you don't want a heavy book, you just want a cute, comforting, and engaging book. And that's exactly what Hating Game felt like for me. It is classic enemies to lovers, office romance, and very, very fun to read. Hello, guys, and welcome back to my channel. And I read the best selling books and tell you if they are actually worth your time. And today we are going to talk about The Hating Game without any spoilers. So let's get started. The story follows Lucy and Josh, who works in the same company, and they are complete opposites and they are in a constant competition with each other. In the start, they dislike each other, but slowly their relationship starts changing, and then they discover this is not just a hate, it is something else. The story has very, very cute moments, fun banter, and very, very nice elevator scenes. I'm telling you. What worked for me? First, male and female lead. Both the characters are very, very natural, relatable, like how you and I behave in office. It is very much similar. Sometimes frustrated, sometimes happy. Have to act nice in front of people even if you dislike them. It is the same thing which is happening, and they sit completely opposite to each other, and they have this staring game going on जहाँ पे वो एक दूसरे को देख रहे हैं, and it is so much fun to read it. And they have this cute banters, like जैसे हमारे ऑफिस में होता है that we don't like someone and हम मुंह पे तो जाके नहीं बोल सकते ना उसको, so how we will say, we will taunt indirectly, indirectly. Same thing यहाँ पे हो रही है because they are in the same position, so they can do that. And one character, like male lead, is very serious, and everyone is scared of him in the office. On the other hand, our female lead is very optimistic, very sweet. Like शी इज़ वन ऑफ दोज मैनेजर्स जिनके पास हम जाते हैं और बोलते हैं कि हमारी डेडलाइन को आप थोड़ा आगे बढ़ा दोगे, और वो मान जाते हैं. और जो मेल लीड है वो वैसे वाले खड़ूस वाले जो बिल्कुल नहीं मानते, जो बोलते हैं कि नहीं तुम मुझे टाइम पे ला के दो. एंड वो उन दोनों का रिलेशनशिप्स देखने का नज़रिया भी बहुत अलग है. लाइक ही ऑलवेज सेज कि ऑफिस है, प्रोफेशनल है, मैं अपना काम करके निकल लूंगा. बट ऑन द अदर एंड हमारी जो लड़की है, शी ट्रीट्स इट लाइक मेरी घर है, इट्स लाइक अ फैमिली, आई एम मेकिंग रिलेशंस विद एवरीवन. सो इट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट, बट इट इज़ वेरी मच फन बिकॉज वो एक एक तरीके से एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं, knowingly unknowingly, and they are very very caring towards each other. Especially जो हमारा मेल लीड है, he cares a lot about the female lead. Like कुछ एक जगह पे सीन है तब वो पूरी रात उसका ध्यान रखता है, and they are not even dating at this point. वो लड़की उससे ढंग से बात तक नहीं करती है, और वहाँ पे वो उसका पूरी रात जाके ध्यान रखता है. he calls doctor and everything, and it is just so fun to read की, and it is just so cute. और जितने प्यार से वो उसका ध्यान रखता है, और वो तो ज़्यादा फ्रीक आउट कर रही है because of her insecurities and everything, and he is just taking care of her very very sweetly. और the best thing is, जो लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद है कि अगर मैंने बोल दिया कि ये मत करो तो मत करो. एंड देर आर वेरी मोमेंट्स जहाँ पे वो बोलते हैं कि आई डोंट लाइक दिस, डोंट मेंशन इट टू मी अगेन, एंड ही मेक्स श्योर कि वो नहीं करे इवन इफ दे आर एनिमीज. लाइक वो लोग डेट नहीं कर रहे हैं, एनिमीज हैं, उस टाइम पे भी उसने वैसे बोल दिया था कि डोंट मेंशन दिस टू मी अगेन. एंड पूरी बुक में उसने फिर मेंशन नहीं करी है वो चीज़. लाइक ही इज़ वेरी मच एक्टिवली लाइक लिसनिंग, और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्वीट सा लड़का है. ग्रीनेस्ट फ्लैग, मतलब बहुत ही अच्छा लड़का है. जो मेल लीड का जो कैरेक्टर है, इट्स वेरी वेरी स्वीट. ऑल्सो द कैरेक्टर्स आर वेरी मच रिलेटेबल. लाइक वो जब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि हमें, अगर मेरे मन में मैं कुछ भी सोच रही हूँ मेरे लीड या मैनेजर की वजह से, मैं उनके सामने जाके नहीं बोलूँगी. सेम थिंग है कि उनको पूरा एचआर के जैसे पूरा सब मेंटेन करके रखना पड़ता है, इवन तो वो दिमाग में सोच रही है कि वाई कांट आई मर्डर दिस गाय. इट इज़ जस्ट सो मच रिलेटेबल बिकॉज उन्होंने ऐसा नहीं रखा है कि एवरीथिंग इज टू गुड इन द ऑफिस. एवरीथिंग इज रिलेटेबल. जो ऑफिस के रूल्स होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो सब उन्होंने प्रॉपरली यहाँ पे दिखाए हैं. तो इट इज़ वेरी मच रिलेटेबल. ऑल्सो आई लाइक द एनिमीज टू लवर्स ट्रोप बिकॉज यहाँ पे बहुत अच्छे से आया है. मैंने पहले भी बुक्स पढ़ी हैं, बट उधर पे ना थोड़ा सा मुझे मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि बैंटर इतना नहीं हुआ था. बट यहाँ पे जो बैंटर, जो स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ में जो बैंटर देखने को मिला है, इट इज़ जस्ट सो नाइस. लाइक वो जो एक दूसरे को धमकियाँ भी दे रहे हैं, एचआर की धमकी दे रहे हैं, किसी भी चीज़ की दे रहे हैं, वो इतना अच्छा लगता है. एंड दे आर इन कॉन्स्टेंट कॉम्पिटिशन. लाइक एक कॉम्पिटिशन है जहाँ पे उनको एक ही इंसान सेलेक्ट हो सकता है उस पोस्ट के लिए, और दूसरा इंसान उसका उसके अंडर आ जाएगा. तो उस के लिए जो कंपटीशन है, दैट ऑल्सो फील्स वेरी रियल. नाउ व्हाट आई डिडंट लाइक, ऑनेस्टली द बुक वाज वेरी स्लो इन द बिगनिंग. लाइक मैं एक ट्रिप पे गई थी और वहाँ पे मैं इसको पढ़ रही थी, तो मैं 3 दिन में सिर्फ 60-70 पेजेस ही पढ़ पाई थी. मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि जहाँ पे मुझे पेजेस टर्न करने के लिए फोर्स करा जा रहा हो स्टार्टिंग में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऐसे सेटअप करती है पूरा कि कैसे वो इस कंपनी को ज्वाइन करा है, उनका जो मर्जर है पूरा, वो पूरा एक सेटअप दे रही है, डिटेल दे रही है कि उसकी बॉस कैसी है वगैरह वगैरह, जो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी. बिकॉज
मुझे नहीं पसंद। मुझे चाहिए कि मतलब तुम स्टार्टिंग में 60-70 पेजेस का सेटअप कैसे कर सकते हो इफ इट इज़ अ रोम-कॉम बुक? यू जस्ट कांट, बट वो कर रहे होते हैं। और बट क्योंकि मैं ट्रिप पे थी मे बी, तो मैंने इसीलिए उसको शायद पढ़ लिया था। बट अगर आप नॉर्मली इसे रीड करोगे तो वो बुक आपको बहुत स्लो लगेगी स्टार्टिंग के पेजेस में। जैसे ही 60-70 पेजेस खत्म होंगे, जैसे ही इवेंट्स होने लगते हैं, वो लोग बाहर जाते हैं, मिलते हैं, बार-बार टकरा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो फिर वो स्लो नहीं लगेगी। फिर आपको लगेगा कि ये कब कन्फेस करेंगे एक-दूसरे से, कब इनको रियलाइज़ होगा कि दिस इज़ नॉट जस्ट अ हेट, दिस इज़ समथिंग एल्स। तो फिर वो वाली चीज़ स्टार्ट हो जाती है। बट स्टार्टिंग के 60 टू 70 पेजेस आपको पेशेंस रहना पड़ेगा, एकदम पेशेंट, एकदम दुनिया भर का अपना धैर्य आप इकट्ठा करिए और पढ़िए, और उसके बाद देन इट्स अ वेरी गुड बुक। तो वो जो स्टार्टिंग में जो स्लो है, वो मुझे थोड़ी-सी अच्छी नहीं लगी थी। अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक सो ऐसी कोई चीज़ है जिसमें मुझे इस बुक से कोई कंप्लेन है। बस यही है दैट स्टार्टिंग में थोड़ा-सा आप जल्दी भी सेटअप कर सकते थे, इतना टाइम लेने की ज़रूरत नहीं थी। नाउ हू शुड रीड इट? ऑनेस्टली इफ यू लव एनिमीज टू लवर्स वाला ट्रोप तो आप ज़रूर पढ़ो। ऑफिस रोमांस पढ़ना है, क्लासिक ऑफिस रोमांस पढ़ना है, तो भी आप पढ़ सकते हो। इट इज़ वेरी मच फन टू रीड, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड इफ़ यू लाइक थोड़ा सा कि स्लो बर्न रोमांस हो, थोड़ा धीरे धीरे डेवलप हो, तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज बहुत लेट जाके कन्फेशन होता है एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड. Overall, I really enjoyed reading this book. Apart from the slowness in the starting, I enjoyed every page of this book. Everything is just perfect. I loved the female lead. I loved the male lead as well. Everything was interesting, and their elevator scenes are very, very good. So, if you want to read this book, just read it for its elevator scenes. You will enjoy it. That's it for this video, guys. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी है, then please like it, share it with your friends, and please subscribe to my channel and support me. And अगर ऐसी कोई बुक है जिसके बारे में आप चाहते हो कि मैं रिव्यू करूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. I'll definitely review it for you guys. So that's it, and I'll see you in the next video with one more amazing book. Bye and keep watching. सब्सक्राइब करना मत भूलना. Bye.